Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In our last lecture, we tried to learn about the formation and usage of present continuous tense. और आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं होता. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस कॉन्टेक्स्ट में नहीं यूज होता. प्रेजेंट कंटिन्यूअस when not to use. Okay, so these are some of the sentences I have written on the board. The first one is, I am not knowing who you are. I am not knowing who you are. The second one is, he is liking his job. The third one is, they are wanting to have something. And the last one is, are you understanding my point? Are you understanding my point? अगर किसी टेस्ट में आ भी जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इनमें एरर कौन सी है, जैसे एरर डिटेक्शन में आ जाते हैं, ठीक है ना, तो क्वेश्चंस में तो ये सारे जो लिखे हुए हैं, नोइंग, लाइकिंग, वांटिंग, अंडरस्टैंडिंग, these are the errors. ये mistakes हैं. Why? Because these are the verbs that you can't use in present continuous tense. इन वर्ब्स को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कभी भी यूज नहीं कर सकते. आई एम नॉट नोइंग हु यू आर, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस. ये एक गलत जो है सेंटेंस है. इसको करेक्ट करने के लिए आपने इसको जो है वो प्रेजेंट सिंपल में रखना है. आप कैसे कहोगे? आई नो हु यू आर. आई नो हु यू आर. ओके, व्हाई? बिकॉज नो का जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसमें हम उसको नहीं रखते. लाइकवाइज the verb like, liking is wrong. You can't say कि he is liking his job, whereas you will be saying कि he likes his job. Likewise, they are wanting to have something. Wanting can't be used in present continuous tense, so you will be saying कि they want to have something. They want to have something. And the last one is, are you understanding my point? ये गलत होता है. That's why most of the teachers वो क्या use करते हैं? Are you getting my point? Are you getting my point? Okay. Whereas वो अगर understand verb को use करेंगे, then they will be using present simple. They will be saying कि do you understand my point? Do you understand what I say? Do you understand me? So you can't use these verbs in present continuous tense. I have written some of the words जिसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते. एंड द वर्ड्स आर नीड, प्रेफर, रियलाइज, रिकॉग्नाइज, बिलीव, सपोज, रिमेंबर, मीन, बिलोंग, फिट, कंटेन, consist and seem. So you can't say कि you are seeming upset. You are seeming upset. You will be saying you seem upset today. You seem upset today. आज तुम बहुत उदास लग रहे हो. Likewise, you can't say कि I am needing a job. No, you will be saying कि I need a job. Okay. Likewise, realize या recognize. I am not recognizing you. No, I don't recognize you. This is how you will be saying. आप इनको जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में कभी भी नहीं रख सकते. एंड जितने भी स्टेटिव आपके वर्ड्स हैं, स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स. अब स्टेटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? जो कि एक स्टेट को शो करते हैं. वो स्टेट कॉग्निटिव भी हो सकती है, कॉग्निटिव, ठीक है, आपके माइंड से रिलेटेड. वो पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव. जैसे फॉर एग्जाम्पल, they are having a car. They are having a car. So this is a wrong sentence. Why? जो have जो है that shows the position. वो किसको शो करता है? पोजीशन को शो करता है. तो आप क्या कहोगे कि they have a car. You won't be saying they are having a car. You will be saying they have a car. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. अब स्टेटिव वर्ब्स ये स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस को शो करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल थिंक. थिंक भी क्या एक स्टेट है, सोचना, ठीक है ना. फील, फील भी क्या एक स्टेट है. ओके. कॉग्निटिव के हवाले से जैसे मैंने ये थिंक यूज किया. लाइकवाइज, रिकॉग्नाइज, बिलीव, ओके, रियलाइज, ये कॉग्निटिव स्टेट में चले जाते हैं. तो जितने भी स्टेटिव वर्ब्स हैं, they can't be used in present continuous tense. I have just told you कि with stative verbs you can't use present continuous.
आप स्टेटिव वर्ब्स को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते. यू विल बी यूजिंग देम इन प्रेजेंट सिंपल और अदर टेंसेस बट नॉट इन कंटिन्यूअस टेंसेस. कंटिन्यूअस टेंस पर चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, यू विल बी यूजिंग देम इन सिंपल जो है टेंसेस. आप उनको सिंपल टेंसेस में यूज कर सकते हैं. कुछ और वर्ड्स भी हैं हमारे स्टेटिव वर्ब्स, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन डू यू सी द मैन स्टैंडिंग ओवर हियर. डू यू सी द मैन, जो हमारे सेंसेस से जो मतलब रिलेटेड होते हैं वर्ड्स लाइक सी. डू यू सी द मैन स्टैंडिंग ओवर हियर, क्या आप उस बंदे को देख सकते हो जो वहाँ पे जो है खड़ा है. तो इट मीन्स कि यू वॉन्ट बी सेइंग कि आर यू सीइंग. सीइंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. लाइकवाइज डिनर स्मेल्स गुड. डिनर स्मेल्स गुड. तो यहाँ पे भी स्मेल क्या है, इज अ, यू कैन कॉल इट अ स्टेटिव वर्ब. ये स्टेटिव वर्ब है या इसको आप लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं. लिंकिंग वर्ब इज द पार्ट ऑफ स्टेटिव वर्ब. लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, वो स्टेटिव वर्ब के क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं. स्टेटिव वर्ब होता क्या है बेसिकली, ये आपको सब्जेक्ट की कंडीशन या स्टेट के बारे में बताता है. फिर वो कंडीशन कॉग्निटिव भी हो सकती है जिसको आप मेंटल कहते हो, पॉजिटिव भी हो सकती है जिसको हम पोजीशन के हवाले से, कि जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि आई हैव अ कार. आई हैव अ कार. अब हैव जो है दैट इज द possessive stative verb. Okay, you can't say कि I am having a car. Okay, so likewise honey tastes sweet. अब honey tastes sweet, it means कि this is a linking verb as well जिसको आप stative verb कहते हो. honey tastes sweet. अब dinner smells good. honey tastes sweet. these are linking verbs. ये जो linking verbs होते हैं they can be replaced with to be verbs. उनको आप to be verb से भी replace कर सकते हो और वो मीनिंग सेम ही देंगे. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से डिनर स्मेल्स गुड, या यू कैन सिंपली से कि डिनर इज गुड. डिनर इज गुड. नाउ यू सी के मीनिंग पे कोई भी जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा. लाइकवाइज हनी टेस्ट स्वीट, सो यू कैन से कि हनी इज स्वीट. अब टेस्ट जो है यहाँ पे एज ए लिंकिंग या एज ए स्टेटिव वर्ब यूज हुआ है. ये जो है बेसिकली हनी के एक स्टेट बता रहा है कि इसकी जो कंडीशन है दैट इज स्वीटनेस. उसमें क्या स्वीटनेस या लिंकिंग वर्ब आप जब कहते हो तो इट मीन्स के द क्वालिटी ऑफ स्वीटनेस इज बीइंग लिंक्ड विद हनी विद द हेल्प ऑफ दिस लिंकिंग वर्ब. तो इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना. अब ये टेस्ट जो है दैट कैन आल्सो बी अ डायनेमिक वर्ब जिसको आप एक्शन वर्ब कहते हो. अब ये जो स्टेटिव वर्ब होते हैं दे आर नॉट एक्शन वर्ब्स. ये एक्शन वर्ब्स नहीं होते. अब वर्ब्स के दो एग्जाम होती हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स. सम आर स्टेटिव एंड अदर आर एक्शन. जो एक्शन मतलब किसी काम को शो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब. जैसे फॉर एग्जांपल आई सिट, आई स्टैंड, आई स्लीप, आई रन. दीज ऑल आर एक्शन वर्ब्स जिनको हम जो है डायनामिक वर्ब्स भी कहते हैं. वेयर एज स्टेट ऑफ बीइंग या स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस को शो करें सब्जेक्ट की तो उनको हम क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं. अब टेस्ट जो है दैट कैन आल्सो बी अ डायनेमिक वर्ब एंड एक्शन वर्ब. जब वो डायनेमिक या एक्शन वर्ब होगा तो उसका कंटिन्यूअस फॉर्म इज पॉसिबल. उसका कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होगा, वो पॉसिबल होगा. जैसे फॉर एग्जांपल आई एम testing a cake. I am testing a cake. Now you see I am performing an action. I am performing an action. So जब टेस्ट को एज एन एक्शन आप यूज करेंगे तो इसका कंटिन्यूअस फॉर्म पॉसिबल है. वेयर एज अगर टेस्ट को आप एज ए स्टेट या एज ए लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज करेंगे तो इसको आप कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते. ओके, लाइकवाइज आई कांट हियर वेल. आई कांट हियर वेल. सेंस ऑफ जो हियरिंग होती है, सेंस ऑफ हियरिंग, मैं सही से नहीं सुन सकता. आई कांट हियर वेल. या आई डोंट हियर यू, मैं आपको नहीं सुन सकता. सो यू कांट से आई एम नॉट हियरिंग यू. आप ऐसा नहीं कह सकते. अब आप यूज कर सकते हो लुक और फील के हवाले से. व्हेन यू से कि समवन हाउ समवन इज लुकिंग और फीलिंग, तो उस सेंस में आप जो है लुक का कंटिन्यूस यूज कर सकते हो. कैसे, मैंने आपको क्या बताया, यू कैन यूज लुक एंड फील, इनके कंटिन्यूस फॉर्म आप यूज कर सकते हैं व्हेन यू मीन टू से कि हाउ समवन इज लुकिंग और हाउ समवन इज फीलिंग. जैसे फॉर एग्जांपल यू लुक ग्रेट या यू आर लुकिंग ग्रेट. यू लुक ग्रेट और यू आर लुकिंग ग्रेट. लाइकवाइज यू कैन से जो है
how do you feel, how do you feel now, या how are you feeling now. so ये बहुत पॉसिबिलिटीज हैं. लुक भी, ये क्या है, अब लुक जो है, जैसे फॉर एग्जांपल लुक एट, अब लुक एट एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल आई एम लुकिंग एट यू, आई एम लुकिंग एट यू, मैं आपको देख रहा हूँ. ओके, सो उस सेंस में लुक का क्या होगा, दैट इज एन एक्शन वर्ब, तो वहां पे उसका कंटिन्यूअस फॉर्म इज पॉसिबल. आई हैव रिटन सम ऑफ द मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस, जो है फील के मैंने कुछ मीनिंग्स भी लिखी हैं और कुछ सेंटेंसेस भी लिखे हैं. इसके और भी दूसरे के मीनिंग्स हो सकती हैं. व्हेन यू आप यूज करते हो द वर्ड फील, किसको रेफर करने के लिए, टू एक्सपीरियंस अ पर्टिकुलर फीलिंग और इमोशन, टू एक्सपीरियंस अ पर्टिकुलर फीलिंग और इमोशन. तो उस सेंस में दैट्स अप टू यू कि वेदर यू यूज प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि हाउ आर यू फीलिंग टुडे, या हाउ डू यू फील नाउ, या हाउ आर यू फीलिंग नाउ. सो दैट्स पॉसिबल, ये पॉसिबल है फील के इस कॉन्टेक्स्ट में, इस कॉन्टेक्स्ट में व्हेन यू एक्सपीरियंस अ पर्टिकुलर फीलिंग और इमोशन. ओके, व्हेन यू मीन टू से कि टू नोटिस, जब आप फील को यूज करते हो इस कॉन्टेक्स्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में, टू नोटिस और बी अवेयर ऑफ समथिंग, या किसी चीज का पता लग जाना. ठीक है, व्हेन यू बिकम अवेयर ऑफ समथिंग, तो उस सेंस में, या व्हेन यू नोटिस समथिंग, तो उस सेंस में आप क्या यूज करोगे, फील. अब उसको नोटिस कैसे करोगे, या तो उसको, उसका कोई जो है वो फिजिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके ऊपर, या वो आपको क्या कर रहा है, टच कर रहा है. ओके, फॉर एग्जांपल आई कैन से कि आई फील अ हैंड ऑन माय शोल्डर, आई फील समवन्स हैंड ऑन माय शोल्डर. आई वोंट बी सेइंग कि आई एम फीलिंग अ हैंड, मैं ऐसे यूज नहीं कर सकता. आई विल बी सेइंग कि आई फील अ हैंड ऑन माय शोल्डर. लाइक इट मीन्स कि आई नोटिस अ हैंड, आई नोटिस अ हैंड, या आई बिकम अवेयर ऑफ दिस थिंग कि देयर इज अ हैंड ऑन माय shoulder. Likewise, यहाँ पे मैंने जो सेंटेंस लिखा है that is she feels a sharp pain in her hand. उसको जो क्या है, क्या फील हो रहा है कि उसके हैंड में बहुत तेज क्या है, दर्द है. ठीक है, सो इट मीन्स कि she notices कि she has a pain in her hand. अच्छा, एंड द थर्ड कॉन्टेक्स्ट इज when you say कि to give you a particular feeling. Likewise, ये भी सेम है, to give you a particular feeling. To give you a particular feeling का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज को देख के आप इंप्रेशन आपके ऊपर पड़ता है, आपके ऊपर क्या पड़ता है, इंप्रेशन. तो उस सेंस में भी आप क्या यूज करोगे, आप इसका कंटिन्यूअस फॉर्म यूज नहीं कर सकते. जैसे फॉर एग्जांपल द सिचुएशन डजंट फील राइट, आप इसका इंप्रेशन, सिचुएशन को देख के मेरे ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ रहा है, मेरे ऊपर इंप्रेशन ये आ रहा है कि आई डोंट feel it right, I don't feel it right. So you will be saying that the situation doesn't feel right, जो situation है वो सही नहीं लग रही. Okay, the word feel to mean either think or believe, तो भी आप continuous form use नहीं करेंगे. जैसे for example I feel that I have to apologize. I feel that I have to apologize. It means कि मुझे लगता है कि मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए. तो इट मीन्स कि I feel, you can replace the word feel with think, या इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं with believe. I believe that I have to apologize. I think that I have to apologize. मुझे लगता है कि मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए. इन कॉन्टेक्स्ट में यू कांट यूज फील इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. आप फील को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इन कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं कर सकते. सो यू हैव टू रिमेंबर कि जो भी स्टेटिव वर्ब्स, अब स्टेटिव वर्ब का पता कैसे चले, इट मीन्स कि अगर वो एक्शन को डिनोट नहीं कर रहा, एक्शन मीन्स किसी काम को जो है वो डिनोट नहीं कर रहा, तो वो आपका क्या होगा, कोई ना कोई स्टेट, और स्टेट को शो करता है या किसी कंडीशन को शो करता है. सो दैट वुड बी अ स्टेटिव वर्ब. तो वो आपका क्या होगा, स्टेटिव वर्ब, या दैट वुड बी अ लिंकिंग वर्ब, या लिंकिंग वर्ब होगा. ओके, तो लिंकिंग वर्ब एंड स्टेटिव वर्ब्स को आप जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते. आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन, you may ask me in the comment box. Like and share the video, and please subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.